Hello friends, a great welcome to the channel. Today we are going to cover the very popular novel Joseph Andrews written by Henry Fielding. This is paper 8 British Literature 18th Century Semester 4 for Delhi University. You can get the important lectures of this particular subject at this link, the same link I'll provide in description. The full title: The History of Adventures of Joseph Andrews and of his friend Abraham Adams, written by English author Henry Fielding. It was one of the earliest books in English language to be published in its entirety. इसको बहुत अर्ली टाइम की पब्लिकेशन माना जाता है जब नॉवेल्स जॉनरा की शुरुआत हुई थी. इससे पहले प्लेज और पोइट्रीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. Joseph Andrews is designed to be a fairly straightforward character. बिल्कुल प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर है, आराम से समझा जा सकता है इनको. बहुत हाई इनके मोरल्स हैं और बहुत ही डिवोटेड हैं, वन विमेन मैन है. उनके कॉन्ट्ररी, आई नॉट से कॉन्ट्ररी बट उनसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और मैच्योर कैरेक्टर हैं पार्सन एडम्स. He is more fully realized and sophisticated figure. He is a pious character और बहुत सारे virtues यानी कि positive qualities हैं उनके अंदर भी. And a charming elderly man with a complexity and a wise and philosophical soul. तो जोसेफ एंड्रूज जहाँ बहुत इनोसेंट है, पार्सन एडम्स बहुत प्योर हैं लेकिन उसके साथ साथ मैच्योर भी हैं. Now let us understand these four characters first. Lady Booby, Sir Thomas Booby, Joseph Andrews and Parson Adams. लेडी बूबी के बारे में जानते हैं पहले. लेडी बूबी, द स्क्वायर सर थॉमस बूबीज वाइफ. स्क्वायर पुराने टाइम में एक रॉयल डेजिग्नेशन हुआ करता था, काइंड ऑफ वजीर, मंत्री, रॉयल पर्सन. स्क्वायर सर थॉमस बूबी की वाइफ हैं जिनको एक पूरा पैरिश यानी कि एक पूरा एरिया, काइंड ऑफ अ जिला संभालने के लिए दे दिया जाता है. उसमें पूरा इनका शासन चलता है. So she is the wife of a very great personality, Sir Thomas Booby, and she hires Joseph Andrews as her footman. Footman एक ऐसा person होता था, एक मेल डोमेस्टिक सर्वेंट यू कैन से, जो कि बहुत ही पर्सनली असिस्ट करता है आपको एट दी डिनर टेबल, एट दी लंच टेबल एंड at your visits to various places in your coach and carriages. बिल्कुल साथ रहता है अपने ऑनर के, काइंड ऑफ मेन हेड सर्वेंट. तो जोसेफ एंड्रूज को उन्होंने अपना हेड सर्वेंट अपॉइंट किया लेडी बूबी ने, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टेड थी, फिजिकली अट्रैक्टेड थी, रोमांटिकली अट्रैक्टेड थी जोसेफ एंड्रूज के. एंड जोसेफ एंड्रूज वाज वेरी पॉपुलर इन गर्ल्स एज वेल. तो लेडी बूबी को लगता था कि मैं तो ब्यूटीफुल भी हूँ और इतनी रिच भी हूँ, तो आई कैन इजीली कंट्रोल दिस पर्सन. However, पार्सन एडम्स, जो कि जोसेफ के सच्चे दोस्त हैं, पार्सन एडम्स जोसेफ को इस तरीके की किसी भी फीमेल से बचाना चाहते हैं, जोसेफ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं टुवर्ड्स academic knowledge and Christian values. After some days, Sir Thomas Booby dies and Lady Booby starts flirting with Joseph. और जोसेफ जी हमारे इतने इनोसेंट है कि उनको समझ ही नहीं आता है कि कोई लेडी उनके साथ फ्लर्ट कर रही है. So Lady Booby and Joseph leave for London where Sir Thomas Booby dies, and after his death, Lady Booby starts flirting with Joseph openly and cleverly invites him to have sexual relationships with her. Joseph did not notice anything and did not notice any of the advancements that she was making, and he was thinking कि a lady in such a high position, मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगी ये लेडी. इसी वजह से जोसेफ कोई भी हिंट नहीं लेते हैं लेडी बूबी की तरफ से. Lady Booby is very angry. How can someone reject me? I'm beautiful, I'm prosperous, I'm a widow, and in every manner, I am an eligible person to flirt with a person like Joseph Andrews. That person should easily be controlled by me, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. गुस्से में आकर वो जोसेफ को फायर कर देती है, and he goes in search of Fanny Goodwill, जो कि उनकी चाइल्डहुड sweetheart है, Fanny Goodwill. So in anger, Lady Booby fires Joseph and he heads towards Booby's country parish in search of Fanny Goodwill.
तो अभी लंदन आए हुए हैं एट प्रेजेंट और वापस उस पैरिश की तरफ चले जाते हैं जहां पर लेडी बूबी का और उनके हस्बैंड का राज चलता था। वहीं पर उनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी रहती है जिसका नाम है फेनी गुडविल। ऑन द रोड जोसेफ को कुछ गुंडे मिल जाते हैं। ही इज रॉब्ड, बीटन एंड लेफ्ट फॉर डेड। वो उन्हें मरा हुआ छोड़कर उनका सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। पीपल आर नॉट हेल्पिंग हिम, लेकिन तभी वहां से एक कैरेज गुजरता है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड टेक हिम टू अ नियर बाय इन। एक पास की एक धर्मशाला में लेकर चले जाते हैं जोसेफ को। कोइंसिडेंटली उसी पर्टिकुलर इन में जोसेफ के फ्रेंड पार्सन एडम्स भी आए हैं। पार्सन एडम्स यहाँ पर कुछ टीचिंग्स के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, सर्मन अपने यहाँ पर लोगों को सुनाने के लिए आए हैं। लेकिन पार्सन एडम्स को यहाँ पर पहुंचकर रियलाइज होता है दैट ही फॉरगॉट दी सर्मन्स एट होम। अब उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ेगा, कंट्री पैरिश में जाना पड़ेगा। जोसेफ को वो देखते हैं और जोसेफ को भी अपने साथ ले जाते हैं एज हिज ट्रेवलिंग कंपेनियन। Somehow पार्सन एडम्स एंड जोसेफ रास्ते में चलते चलते एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। पार्सन एडम्स किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं एंड ही इज टॉकिंग टू अ हंटर। एक हंटर से बात कर रहे होते हैं तभी किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है। हंटर तो वो आवाज सुनते ही भाग जाते हैं, लेकिन पार्सन एडम्स का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डिटर्मिन्ड है। वो पूरा सोचते हैं कि मुझे एक लड़की को बचाना है, एक लड़की किसी मुसीबत में, and he runs towards the direction of that scream, and Adam saves her from the attempted rape. When Adam sees the girl, he is surprised to see that she is none other than Joseph's sweetheart, Joseph's girlfriend, Fanny Goodwill. एडम और फेनी एक इन में चले जाते हैं और कोइंसिडेंटली अगेन उसी इन में जोसेफ एंड्रयूज भी रुके हैं। They find Joseph, and Joseph, as soon as he sees Fanny, he wants to get married to her right away, but accepts Adam's advice कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा घर वालों की परमिशन ले लो, उसके बाद शादी करना। एट प्रेजेंट एडम्स और एंड्रूज दोनों के ही पास पैसे नहीं है। एंड्रू के तो पैसे कुछ गुंडे ले गए थे उनसे लूटकर। इन द मॉर्निंग एडम्स गोज टू अ लोकल क्लर्जीमैन मिस्टर ट्यूलिबर। मिस्टर ट्यूलिबर को वो जानते थे, उनके पास जाते हैं कुछ पैसे लेने के लिए टू पे फॉर द बिल्स एट द इन, बट दिस रिक्वेस्ट इज डिनाइड एंड इट हैज बीन शोन दैट प्रॉस्परस लोग जो है वो काइंड नहीं है, लेकिन पुअर लोग जो है वो काइंड है। एक पुअर पेडलर होता है जो इनकी पूरी मदद करता है। जितने भी पैसे थे इस पेडलर के पास, he gives all the money to Parson Adams to pay the bill. अभी तीनों चलते जा रहे हैं, पार्सन एडम्स, फेनी गुडविल एंड जोसेफ एंड्रयूज, एंड दे टेक शेल्टर विद द काइंड फैमिली विल्सन्स। उनके होस्ट्स का नाम है विल्सन्स, मिस्टर एंड मिसेस विल्सन। They host the Wilson family enjoy a very simple life of satisfaction, contentment in the rural areas, but the only deprivation in their life is that once upon a time their son was kidnapped as an infant. तो ये पूरा ग्रुप किसी तरीके से कंट्री पैरिश वापस आ जाता है। वापस आकर देखते हैं कि लेडी बूबी भी अपने कंट्री पैरिश में वापस आ चुकी है। लेडी बूबी की अब दो ट्रबल्स है। द वन थिंग, शी इज इन लव विद जोसेफ एंड्रयूज एंड शी कांट सी जोसेफ एंड्रयूज विद फेनी, एंड द अदर थिंग इज कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल है कि इफ आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस पर्सन, आई want to get married to this person, will the society accept and will that not be a harm to my reputation and my status? But her first trouble is Fanny. Jealous of Fanny, she takes legal action to get Fanny banished from the parish. किसी भी तरीके का करप्शन करके वो फैनी को निकलवा सकती थी, because she was kind of a queen of the parish. अब जो नई कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, नेफ्यू ऑफ लेडी बूबी, मिस्टर बूबी, एंड पेमिला, वाइफ ऑफ मिस्टर बूबी, एज वेल एज सिस्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज. Her nephew, Mr. Booby, arrives, Lady Booby's nephew, Mr. Booby arrives with his wife, Pamela, who is Joseph's sister. Mr. Booby rescues his brother-in-law and Fanny during their sentences.
मिस्टर बूबी पूरे तरीके से हेल्प करते हैं जोसेफ एंड्रयू की और फेनी गुडविल की, जिससे कि लेडी बूबी कोई रॉन्ग एक्शन ना ले पाए इन दोनों के अगेंस्ट। और जोसेफ से कहते हैं कि आई सी ग्रेट टैलेंट इन यू, और तुम्हारे अंदर जेंटलमैन बनने के, सिविलाइज्ड होने के और एकेडमिक नॉलेज ग्रैब करने के सारे टैलेंट्स हैं, एंड यू शुड बी हाईली एजुकेटेड, एंड आई एम रेडी टू ट्रेन यू टू बिकम अ जेंटलमैन। जोसेफ से तो बहुत इम्प्रेस्ड है मिस्टर बूबी, लेकिन फैनी से नहीं। उन्हें फैनी के तौर तरीके लोअर क्लास के लगते हैं और अपनी आंट लेडी बूबी से भी बड़े इम्प्रेस्ड हैं, जो हमेशा फैनी से जेलस रहती है। So after being influenced by his aunt, he advises Joseph, break off your engagement to Fanny since she is poor and she doesn't have any class. And this will, damage all of your chances to attain a higher social rank. तुम्हारे अंदर तो सारी क्वालिटीज हैं सोशल रैंक को अटेन करने की, लेकिन फैनी के अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, तो फैनी के साथ ब्रेकअप कर लो। लेकिन जोसेफ अपने हाई सोशल रैंक और फैनी के बीच में फैनी को चूज कर दें। ही इज लॉयल टू हर। अब कहानी में वो पुअर पेडलर हमारा वापस आता है। The poor peddler, the group met on the road, do you remember? Comes to the parish and tells Fanny that her actual parents are Mr. and Mrs. Andrews, that is, the father and mother of Joseph Andrews. And everyone is shocked by this news, as this news means that Joseph and Fanny are brother and sister. How can that be possible? मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज के अब पिक्चर में आने की जरूरत है। दे अराइव द नेक्स्ट डे एंड मिसेस एंड्रयूज एंड मिस्टर एंड्रयूज कंफर्म द स्टोरी दैट the daughter was kidnapped in the infancy and replaced with Joseph. So Fanny, no matter, is their daughter, but Joseph is not their biological son. So thank God they are not brother and sister. This poor peddler discloses one more secret, that the real parents of Joseph Andrews are actually Mr. and Mrs. Wilson. अगर हम मिस्टर एंड मिसेस विल्सन को जोसेफ के रियल पेरेंट्स माने, तब तो इस नॉवेल का टाइटल ही गलत हो जाता है। इट शुड हैव बीन जोसेफ विल्सन. So the peddler discloses that Joseph's parents are actually Mr. and Mrs. Wilson, the kindly host who gave refuge to Joseph and the whole party once upon a time. So just thank God they are not brother and sister just after knowing that they get married. They are married and Mr. and Mrs. Booby give them enough money to live life comfortably. These are the themes of the novel. A tussle between chastity, that is purity, virginity and lust. जोसेफ जो हमारा एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑफ मेल चेस्टिटी, उनको कितनी हाई प्रोफाइल ब्यूटीफुल लेडी ने सिड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन वो सिड्यूस नहीं हुए. ही रिमेन्ड अ वन विमेन मैन. He is a victim of seduction by Lady Booby, and he is an attractive young man physically, and many women try to woo him, seduce him for physical lust and intimate relationship, but Joseph repressed his sexuality and devoted himself to chastity towards Fanny. एक और थीम जो सामने आता है इस स्टोरी में, दैट इज करप्शन ऑफ लंदन सिटी. लंदन सिटी की इमेज कैसे दिखाई गई है कि पीपल आर डोमिनेटेड बाय द पैशन एंड इमोरालिटी, और इमोरालिटी हर जगह प्रिवेल कर रही है, और उसका एक एग्जाम्पल लेडी बूबी की फॉर्म में दिखाया गया. शी इज फुल ऑफ वाइसेस, ड्रिंकिंग करती हैं, गैम्बलिंग करती हैं, और जोसेफ एंड्रयूज के पीछे लस्टफुल हैं बिल्कुल. सो शी इज द सिंबल ऑफ डेप्रिविटी ऑफ मोरालिटी. She tries to eat up Joseph Andrews' virginity as she gambles, drinks, and has fun with her friends. She played cards with her pals with her friends for 6 days while seeming to be in mourning after her husband's passing. जब उनके husband की death हो जाती है, तो she is actually enjoying playing cards with her friends. She began to flirt with Joseph Andrew and wanted to have physical relationship with him. This shows the corrupt environment of London City. She was one of the representative of that corruption.
I hope you understood the whole novel and this is going to be helpful for your upcoming examination. Please provide your valuable feedback in the form of comments and do not forget to share and subscribe the channel.